नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। गैंगस्टर जयपाल भुल्लर एनकाउंटर मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। भुल्लर का एनकाउंटर करने वाली पंजाब पुलिस की ओकू टीम के चीफ गुरमीत चौहान ने न्यूज 18 पर खुलासा किया कि कैसे पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ओकू टीम जयपाल भुल्लर को 10 मई से ही ट्रैक कर रही थी। जब वो खन्ना के पेट्रोल पंप पर पहुंचा था, पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर भागा था। भुल्लर ने उसी पिस्तौल से जगरांव में 2 पुलिस वालों की हत्या की थी। इसके बाद कैसे ऑपरेशन जैक को कामयाब बनाया गया, ये बता रहे हैं ओकू टीम के चीफ गुरमीत चौहान। चौहान जी ने उन्होंने नाल गलबात करते हैं कि जिहड़ा ये सारा ऑपरेशन होया किस तरह ये पूरे ऑपरेशन ਨੂੰ अंजाम दिता। चौहान साहब, जिस तरह काफ़ी दिनों तो ये जिहड़ा जयपाल भुल्लर है, जसप्रीत जस्सी है, इन्हां दी भाल जारी सी। काफ़ी टाइम तो ये चकमा दे के ही फरार हुंदा सीगा, लेकिन जगराओं दे वारदात नूं जिहड़ी अंजाम दिता उस तो बाद ये सारा तुसीं ऑपरेशन जिहड़ा जैक इनू शुरू किया। ये सारा थोड़ा समझना चाहूँगे कि किस तरह पुलिस ने जिहड़ा काम किया तो ये सारा जिहड़ी हैगी पुलिस नूं लीड मिली। जिस दिन ये 15 मई ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਸੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ASI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। तो जी जगराओं वाली वारदात सी एम्यूनीशन जोड़ा मिले एम्यूनीशन जोड़ा कि खन्ना पुलिस का सेम बैच सेम कैलीबर का। तो इस तो सानू यकीन हो गया भी ये उही बंदे ने, उन्होंने इनवॉल्वमेंट है, लीड जी है पुलिस कन्फर्मेशन ऑलमोस्ट कन्फर्मेशन सी कि ये जयपाल का हथ है जी। ਤੇ ਜੈਪਾਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 22 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਉਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਉੱਥੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੱਬੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਦਬੜਾ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਪੁਟਸ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਲੂਜ਼ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦਬੜਾ ਤੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੈਪਾਲ ਤੇ ਜੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਡਾ ਅਕੋਰਡ ਸੀਗੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 2016 ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਕਲੂਜ਼ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 11:30-12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ GT ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। तो डिटेन ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਪਨਸ ਉੱਥੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੈਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਵੈਪਨਸ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹਲੇ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਡਨ ਬਾਈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ CID ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ, STF ਦਾ ਟੀਮ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ STF ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ? ਬਿਲਕੁਲ 120% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ DG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਇਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ STF ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
चंडीगढ़ तो कैमरामैन विनोद कुमार नाल मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। अगली बड़ी खबर, SC/ST पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप विवाद मामले में जैक और सरकार के बीच बैठक हुई। जैक ने रोल नंबर न देने का फैसला वापस लिया है। बैठक के बाद जैक अध्यक्ष जगजीत धुरी का बयान है कि 2017-2020 तक 1549 करोड़ का बकाया है अभी तक, और इससे पहले का 65 करोड़ का बकाया भी है, जो पहले 60-40 रेशो के साथ 40% देने का ऐलान किया गया है। फीस को लेकर मुद्दा बना हुआ है अभी तक, और सरकार अपनी कमेटी बनाकर फीस रिव्यू करेगी। लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है। इसमें बकाया ना मिलने को लेकर आपत्ति भी जताई गई। SC/ST पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप विवाद है, जिसमें जैक और सरकार के बीच बैठक हुई। रोल नंबर न देने का फैसला वापस ले लिया गया है। बैठक के बाद जैक अध्यक्ष जगजीत धुरी का बयान आया है। उनकी तरफ से कहा गया 2017-2020 तक का 1549 करोड़ का बकाया है। इसके अलावा इससे पहले का 65 करोड़ का बकाया भी है, जो पहले 60-40 के रेशो में 40% देने का ऐलान हुआ था। फीस को लेकर अभी मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा सरकार अपनी कमेटी बनाकर फीस रिव्यू करेगी। तो SC/ST पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का विवाद गहराता हुआ। मामले में जैक और सरकार के बीच बैठक हुई है। रोल नंबर न देने का फैसला वापस ले लिया गया है। हालांकि बैठक के बाद अध्यक्ष जगजीत धुरी ने बयान दिया, कहा कि 1549 करोड़ का बकाया अभी है, और ये बकाया 2017 से 2020 के बीच का है। इससे पहले का भी बकाया है। ये राशि 65 करोड़ है, जो पहले 60-40 के रेशो के साथ 40% देने का ऐलान हुआ था। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़ गए हैं। पंकज, SC/ST पोस्ट स्कॉलरशिप मामले में अब स्कॉलरशिप का जो विवाद है, उसमें जो बैठक हुई है, क्या लग रहा है, क्या इस मामले का हल होगा? आज की बैठक में क्या महत्वपूर्ण रहा? देखिए, एक तरफ SC कमीशन ने जहां पर नोटिस जो है वो पंजाब मुख्य सचिव को भेजकर तलब किया है और ये कहा है कि इस पूरे मामले में जवाब दिया जाए, वहीं पर JAC की तरफ से आज सरकार के साथ मीटिंग की गई और मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि 60% केंद्र सरकार जो है वो जारी करे और 40% जो है पंजाब सरकार की तरफ से जारी किया जाना चाहिए। ये लगातार क्योंकि ये मुद्दा बनता जा रहा है और स्टूडेंट के रोल नंबर भी इस वजह से रुके थे, क्योंकि स्कॉलरशिप का पैसा जो है वो कॉलेज को जो है वो जारी नहीं हुआ था। और ऐसे में अब फैसला जरूर कर लिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार और पंजाब सरकार कब तक स्कॉलरशिप का जो बकाया है वो कॉलेज को जारी करेगी, देखने वाली बात होगी। क्योंकि केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि पंजाब जो है वो अपना पूरा हिसाब किताब दे, अपने पुराने जो हिसाब किताब है वो क्लियर करे, उसके बाद ही अगली राशि जो है वो जारी की जाएगी। लेकिन कम से कम इस बीच में उन लाखों छात्रों को राहत जरूर मिली है जिनके रोल नंबर इस वजह से रोके गए थे। निश्चित तौर पर, क्योंकि स्टूडेंट के करियर का सवाल होता है। अगर उनको रोल नंबर नहीं मिलेंगे तो वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, और एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो उनका एक साल खराब हो जाएगा। और इसकी वजह बन रही है केंद्र सरकार और पंजाब सरकार का आमने सामने होना। तो ऐसे में JAC ने मीटिंग की है पंजाब सरकार की तरफ से, फैसला जरूर किया गया और ये देखने वाली बात होगी कब तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि SC कमीशन ने भी इस पूरे मामले को लेकर जो है जवाब तलबी जो है वो की गई है। शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए। तो कम से कम एक राहत उन छात्रों के लिए जिनके रोल नंबर रोक दिए गए थे। SC/ST पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का विवाद पंजाब और केंद्र सरकार के बीच में बना हुआ है, और यहां इस बीच में JAC की तरफ से सरकार के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद JAC के अध्यक्ष जगजीत धुरी ने कहा कि 2017 और 20 के बीच का 1549 करोड़ का बकाया है। इसके अलावा भी इससे पहले का 65 करोड़ रुपए का बकाया है, जो पहले 60-40 के रेशो से 40% देने का ऐलान हुआ था। कुल मिलाकर देखना यह होगा कि कब तक बकाया राशि केंद्र की तरफ से पंजाब सरकार को दी जाएगी, उसके बाद ही इस मसले का कुछ हल निकलेगा। अगली बड़ी खबर, अमृतसर में भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। कार से 48 विदेशी पिस्तौल मिले हैं। जगदीप सिंह नाम का युवक कार में सवार था। बटाला के पास बलपुरिया गांव का जगदीप बताया गया। अमृतसर के कुथू नंगल इलाके की ये घटना बताई गई है। बड़ी खबर अमृतसर से, जहां भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं।
कार से बताया गया है कि 48 विदेशी पिस्तौल बरामद हुई हैं और इस कार में जगदीप सिंह नाम का एक युवक सवार था। बटाला के पास बलपुरिया गांव, जहां का जगदीप बताया गया है, अमृतसर के कत्थू नंगल इलाके की ये घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं अमृतसर में। कार से ये हथियार बरामद हुए हैं। 48 विदेशी पिस्तौल बताई गई हैं इस कार में, जिसमें से हथियार बरामद हुए हैं उसमें जगदीप सिंह नाम का एक युवक सवार था। बटाला के पास बलपुरिया गांव का ये जगदीप सिंह बताया गया, जिसकी कार से इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। अमृतसर के कथुंग नंगल इलाके की ये घटना है। और जानकारी लेंगे अमृतसर से मेरे सहयोगी अमित शर्मा फोन लाइन जुड़े हैं। अमित, भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, पुलिस क्या और जानकारी इस बारे में दे पाई है? अमित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुदेश। अमित, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, पुलिस ने और क्या जानकारी दी है? कौन ये जिसकी कार से ये हथियार बरामद हुए हैं? जी बिल्कुल सुदेश, मैं बताना चाहूंगा कि अमृतसर के कत्थू नंगल के पास जिस युवक से ये हथियार बरामद हुए हैं उसका नाम जो जगजीत सिंह बताया जा रहा है, उसके दर्पण नाम के युवक से संबंध थे, जो कि इस समय यूएसए में रहता है। काफी देर पहले दुबई गया था जगजीत सिंह, जो आरोपी पकड़ा गया है, उसका उस समय भी उससे संबंध थे। और दर्पण ने ही, जो यूएसए में बैठा, उसने कहा था कि कत्थू नंगल के पास 2 बैग लेके अपने पास रखने हैं और जब उसकी जरूरत पड़ेगी उस समय वो बताएगा, उस समय ये सामान को बाहर निकालना है। लेकिन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल को इस बारे में सूचना मिली और उसने नाकेबंदी के दौरान जब जगजीत को रोका तो उसके जो बैग, उसकी गाड़ी में 2 बैग पड़े थे और जब उसकी तलाशी ली गई तो कम से कम 48 जो कि विदेशी मैगजीन बरामद की गई है। हालांकि अभी इसके साथियों की तलाश के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है कि कहां से ये लेके आया था ये बैग, उसने इसको कौन देके गया था, इस बारे में जांच कर रही है। लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल को मिली है और एडीजीपी ने खुद इस बारे में कहा है कि अभी इसमें और भी खुलासे होने की संभावना है। अमित, क्या ये एक बड़ा गिरोह हो सकता है? पुलिस ने इस बारे में कोई जानकारी दी हो कि कुछ और लोग भी अभी निशाने पर हैं, उन तक पहुंचने के लिए धरपकड़ शुरू हो गई हो? जी सुरेश, बिल्कुल। जो पुलिस ने साफ लफ्जों में कहा है कि जो यूएसए में युवक बैठा है दर्पण, जिससे जगजीत ने ये हथियार बरामद किया है, हथियार लिए हैं, उसके संबंध जो है जो कनाडा और विदेशों में बैठे आतंकवादी और संगठनों से है। अभी इसे जांच की जा रही है जगजीत से और इसका रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद और भी खुलासे होने की संभावना है कि क्या इसके कनेक्शन कोई पाकिस्तान से है, क्योंकि एडीजीपी ने साफ तौर पे कहा है कि विदेशों में बैठे आतंकवादी संगठनों से दर्पण के संबंध है। लेकिन उसमें जगजीत कितना इन्वॉल्व है, इस बारे में भी जांच की जा रही है। जी धन्यवाद अमित जानकारी देने के लिए। तो अमृतसर में एक कार से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। बताया गया है कि 48 विदेशी पिस्तौल इससे बरामद हुए हैं। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जगदीप सिंह नाम का ये युवक है, जिसके विदेश में बैठे एक बड़े अपराधी के साथ संपर्क थे, उसी के जरिए ये हथियार उस तक पहुंचे। लेकिन आगे ये हथियार कहां भेजे जाने थे, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, फिलहाल इस पर तफ्तीश जारी है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हम आपको कुरुक्षेत्र और कैथल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रोष जताया। वहीं न्यूज 18 से बातचीत में कुमारी सैलजा ने नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को घेरा। कुमारी सैलजा ने कहा कि जुमलों की सरकार है। उधर कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का तरीका भी अनोखा था। यहां ट्रैक्टर को बैलों से खींचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया। इधर पंजाब कांग्रेस ने भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। मोहाली के कुराल इलाके में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ रोष व्यक्त किया। लेकिन इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की भी धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि सुनील जाखड़ कार्यकर्ताओं से
अपील करते नजर आए कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जाए। वहीं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सुनील जाखड़ ने पीएम मोदी से लेकर योग गुरु बाबा रामदेव को भी निशाने पर लिया। वहीं अमृतसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध के तौर पर एक गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में लोगों के लिए गाड़ियां चलाना भी मुश्किल हो गया है। डीजल पेट्रोल हाय हाय, ये रेट बढ़ते क्यों जा रहे हैं? जो $125 कच्चा तेल था, तब डीजल की कीमत जिस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार छोड़ी है 54 रुपए थी। $125 कच्चा तेल था, आज कच्चे तेल की कीमतें आधी रह गई और डीजल की कीमतें दुगनी होगी। कारण क्या है? उसका कारण है उसके पीछे देश का प्रधानमंत्री। उस समय $125 होने पे भी डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के लोगों के ऊपर भार नहीं पड़ने दूंगा, महंगाई के इस आलम में उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ने दूंगा। और दूसरी